ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। प्रस्तुत है उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों पर हमारी विशेष रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। 38वें राष्ट्रीय खेलों के 16वें दिन की हाइलाइट्स के साथ मैं मुबीन अहमद खान। नमस्कार। देहरादून में ट्रैक एंड फील्ड यानी एथलेटिक्स के मुकाबलों का आज था आखिरी दिन। किसने किसको पीछे छोड़ा, मेडल्स अपने नाम किए, एथलेटिक्स की रिपोर्ट के साथ शौर्य चौधरी। It was the final day of track and field action at the 38th National Games, and the stage was set for an epic culmination to an event that has already set the stage alight with Games records galore. Today, both the track and the field added to that list as the creme de la creme of the national circuit battled it out under a crisp late afternoon sun. Pooja Singh from Haryana, just 17, has already won medals for India at the age group levels and been to the Asian Games in women's high jump. Today, she was at the top of her game, clearing an impressive 1.84 meters to claim a Games record, beating the mark of 1.83 meters set by the legendary Swapna Burman. We asked her how she felt about breaking that record. सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। फिर रिकॉर्ड के लिए तैयारी करके आई, लास्ट टाइम थोड़ा सा चूक गई थी सर रिकॉर्ड से। Javelin has captured the imagination of Indians since Neeraj Chopra emerged on the scene and went on to become a legend. And the men's javelin throw was a competition to watch out for here with a strong field. Policeman Sachin Yadav from Uttar Pradesh, whose recent 80+ exploits have turned heads, was actually carrying an injury into the games but found his rhythm slowly to clear a games record of 84.39 meters with his fifth throw. Sachin. कंपटीशन से पहले मेरा एंकल खराब हो गया था, बस मन में डाउट आ गया कि मतलब यार फिर एंकल में पेन आ गया। फिर कॉन्फिडेंस आया कि कोच साहब थे, फिर या पीछे भाई सब खड़े थे, तो मतलब कोई नहीं मारेगा तुम हार, बाकी हम अपना देख लेंगे, तो कर अपना अच्छा बेस्ट कर। Onto the track, an Asian Games medalist Vidya Ramraj left the field behind in a blaze to triumph in the women's 400 meters relay, but was still disappointed with a time of 58.11 seconds. Every day I'm getting gold, but gold is not like we want to go for world athletes. My timing is not into, so I'm not happy for the timing. Sawan Barwal is calmness personified. The Himachal Pradesh athlete who broke the 10,000 meter games record days ago promised he would do the same in the 5,000 meters, and so he did, not once slowing down to finish the race in 13 minutes 45.93 seconds, leaving behind the previous games record easily. We asked him the secret behind his confidence. प्रैक्टिस पे डिपेंड है, कैसे प्रैक्टिस चल, कैसे फिटनेस है, उसके हिसाब से। अभी सामने का रास्ता क्या है? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन का ट्राई करेंगे, फेडरेशन का पहले। Meanwhile, in what was almost a photo finish, Gujarat's Ruchit Mori, who recently returned to the track after a lengthy hiatus, ran a perfect race in the men's 400 meter hurdles to set a personal best and storm his way to the goal with a time of 50.97 seconds. A jubilant Ruchit told us what was going on in his mind towards those close last seconds. खुल के भागना था, अपनी ओर देखना था लेन में। काफी क्लोज फिनिश था, क्या चल रहा था तब दिमाग में? बस खत्म होना है, लगे रहो। In other results, Ankita from Uttarakhand won her third medal of the games by triumphing in the women's 5,000 meters. Jasmine Kaur from Punjab was a victor in the women's shot put, while in the thrilling 4x400 mixed relay, gold was won by Kerala. The national games was only the stepping stone for these athletes coming into their own as they strive to bring laurels to the nation on the international stage. हरिद्वार में आज महिला और पुरुष वर्ग के हॉकी सेमीफाइनल्स मैच खेले गए। रिपोर्ट के साथ मनीष भट्टाचार्य जी। सेमीफाइनल मुकाबलों का यही दस्तूर है, लीग की अंक सारणी का कोई असर नहीं पड़ता। आज महिलाओं के पहले सेमीफाइनल में 10 अंकों वाली महाराष्ट्र के साथ ऐसा ही हुआ। उसे 9 अंकों वाली मध्य प्रदेश की महिला टीम ने 4-1 से हराया। 60वें मिनट तक बात 1-1 पर बराबरी की थी, पर सेमीफाइनल का तकाजा था, टाई ब्रेकर होना था। मध्य प्रदेश की गोलकीपर ईशिका भदौरिया ने जाबाजी से लगातार 2 गोल रोककर मध्य प्रदेश को 4-1 के स्कोर से फाइनल तक पहुंचाया। मैंने सोचा गिरना नहीं है, पेशेंस के साथ अंदर नहीं जाने देना बॉल। गोलकीपर की तारीफ करती नहीं थकी थी कप्तान करिश्मा यादव। वो सर आउटस्टैंडिंग खेली है, उसने सारे शूट आउट लिए हैं मैच में भी, तो उसका बहुत बड़ा रोल रहा है आज के मैच में भी और पिछले मैचेस में भी। कोच परमजीत सिंह ने अपने फाइनल के मंसूबे बताए। तो फाइनल ही है, टफ रहेगा, फाइट करेंगे। दूसरा सेमीफाइनल हरियाणा और झारखंड के बीच खेला गया। हरियाणा ने 2-1 से मैच जीतकर फिर एक बार फाइनल में प्रवेश किया। इस बार कप्तान रानी रामपाल फाइनल में कुछ अलग करने वाली हैं। इस बार हमारी टीम काफी तैयार है कि हम इस बार जो है वो पिछली बार का बदला जो है वो अपना लिया जाए और हम यहाँ से गोल जीत के जाएं। देर से दुरुस्त आने वाली बात थी आज के पुरुषों के पहले सेमीफाइनल में। कर्नाटक ने तीसरे चौथाई के अंत से खेल के अंत तक जबरदस्त वापसी की, स्कोर 2-2 से बराबर किया, मैच को ले जाकर झोंका पेनल्टी शूटआउट के अहाते में। बात वहां भी नहीं बनी, मामला गोल्डन गोल तक पहुंचा और फिर कर्नाटक ने हॉकी सेमीफाइनल का नायाब इतिहास लिखा 5-4 से महाराष्ट्र को हराकर।
कप्तान एसवी सुनील की टीम ने दर्शक दीर्घा को आने वाले कई सालों तक हॉकी में याद रखने वाला खेल दिखाया। 2-0 डाउन थे, उसके बाद 2-1 हुआ, शूट आउट में भी डाउन थे, फिर इक्वलाइज किया, फिर सडन डेथ में हम जीता। टीम एफर्ट है और लड़कों ने बहुत अच्छा खेला। आज कोशिश रहेगी कि कल फाइनल में भी एक गेम खेलेंगे और कोशिश करेंगे जीतने के लिए। पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाए रखने वाली उत्तर प्रदेश को आखिरी सेमीफाइनल में पंजाब से भिड़ना था। गति, कौशल, तालमेल और कमाल के संतुलन से उत्तर प्रदेश ने पंजाब को 5-3 से पछाड़ा। हालांकि अंतिम 2/4 में पंजाब ने हावी होने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंततः उत्तर प्रदेश की जीत हुई। कल कर्नाटक से फाइनल में भिड़ेगी कप्तान विष्णुकांत सिंह की टीम। अपना पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग जो हमारा टीम का प्लान है वो हम उस पर सक्सेस हो जाए। टीम के कोच जितेंद्र सिंह भदौरिया। टीम हमारी बहुत अच्छी है, आई होप कि हम लोग जीतेंगे। कल महिला और पुरुषों के फाइनल मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:10 से और फिर 1:55 से। शिवपुरी पौड़ी में नदी के रेत पर खेली जा रही है बीच कबड्डी। बीच कबड्डी के मुकाबलों की रिपोर्ट के साथ हैं फ्लोरिन रॉश और सौभाग्य रथ। The women's final in beach kabaddi in Shivpuri beach was a heart-stopping thriller with Haryana emerging victorious, defeating Uttar Pradesh 34-33. The 1-point margin was a testament to the intense competition. Haryana's team members erupted in joy, basking in the glory of their hard-fought victory. Captain Ritu shared her joy with us. नेशनल में भी जीते थे और यहीं भी जीत गए, बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट में हमने भी थोड़ी गलती कर दी, लेकिन हम तो जीत गए, लड़कों की तरह नहीं हुआ। Despite winning the silver, Uttar Pradesh's team members wore a disappointed expression. Team's raider Anu spoke to us on her team's disappointing loss in the finals today. थोड़ा दुखी भी है कि 1 पॉइंट हो रहा, जाता बराबर रह जाते या फिर 2 आ जाता, जीत भी जाते, जीत के इतनी लावे आकर थोड़ा दुख है। 1 साइड हारते फिर इतना दुख नहीं होता, हमने मेहनत करी, हार के कोई बात नहीं जी, बस दुख है। पर Both teams had played semi-final matches earlier in the day. Haryana defeated Himachal Pradesh while Uttar Pradesh dominated Uttarakhand to secure their spots in the final. Uttarakhand and Himachal Pradesh shared the bronze medal for reaching the semi-final. As the beach kabaddi event came to a close, memories of the thrilling matches lingered, leaving a lasting impression on all those who witnessed the excitement. पुरुष वर्ग के बीच कबड्डी के फाइनल मुकाबले में आमने सामने थी राजस्थान और हरियाणा। पहले हाफ में हरियाणा 7 पॉइंट की बढ़त बना चुकी थी। ये बढ़त आखिरी 3 मिनट तक बरकरार तो थी, लेकिन धीरे धीरे राजस्थान ने अंतर कम किया और खेल के आखिरी क्षणों में राजस्थान के रेडर जय भगवान ने 3 पॉइंट लाकर खेल का रुख राजस्थान के तरफ मोड़ दिया और हुटर बसते बसते राजस्थान को 38वें राष्ट्रीय खेलों में बीच कबड्डी का पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक मिल चुका था। हरियाणा को रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा। राजस्थान के खिलाड़ी जय भगवान। हमारी सोच यही रहती है कि हम मैच को आखिरी तक दम तक खेलना चाहिए। जैसे जैसे मैच क्लोज है हमने और जोर लगाया, अपनी बॉडी के जो पूरी एनर्जी थी, आखिरी मैच था 5 मिनट में पूरी ताकत दी, इसी से जैसे हम जीते हैं। आप हैं राजस्थान के कोच बबरू खान। हम कह रहे हैं कि बच्चों को एनर्जी आप कवर कर रखो, एनर्जी कवर होगी तो लास्ट के अंदर अपन मार देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ट्रेजेडी की हमने उससे वही फायदा मिला हमें बेनिफिट। हरियाणा के खिलाड़ी मनीष वस्त। वैसे हमारे सारे प्लेयर बढ़िया खेले, ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई बेकार खेला या वो खेला, होता है खेल है, हार जीत होती रहती है इस चीज़ों में, मगर वही बात है कभी किसी को अपना मोटिव नहीं खोना चाहिए। आज नहीं तो कल गोल्ड आएगा, मेहनत करेंगे तो। कैकिंग और कैनोइंग स्पर्धाएं टेहरी झील में चल रही हैं। रिपोर्ट के साथ हैं दिलीप झा। टिहरी झील में आयोजित केनो स्प्रिंट प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज महिला और पुरुष दोनों वर्गों में K2 500 मीटर और C2 500 मीटर में 8-8 टीमों के बीच रेस हुई। महिला K2 500 मीटर में उत्तराखंड की सोनिया देवी और रोजी देवी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक, मध्य प्रदेश ने रजत और उड़ीसा ने कांस्य पदक जीता। सोनिया देवी। बहुत अच्छा लगा हमको, ये रेस के लिए कॉन्फिडेंट थी, अपने कोचेस ने इतना मेहनत करवाया, उसका फल तो मिल ही गया। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं एशियन गेम खेली है, अभी हाल ही पे लास्ट एशिया कप खेलने गई थी इंटरनेशनल, उसी में मैं 2 गोल लेकर आया। मेरा नाम मनस्विनी स्वाई है, मैं मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंट करती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, 20 दिन हो गया हम लोग यहाँ पे तैयारी चल रहा है और इस बार उत्तराखंड ने बहुत अच्छा से किया है नेशनल गेम के लिए। C2 500 मीटर में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की एल नेहा देवी और कावेरी डीमर ने स्वर्ण पदक, उड़ीसा ने रजत और उत्तराखंड ने कांस्य पदक जीता। मैं कावेरी ढीमर रहने वाली मध्य प्रदेश की हूँ। अभी 1 साल पहले मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की, तो मैं सर्विसेज टीम से पार्टिसिपेट कर रही हूँ 2 साल से कंपटीशन में। लास्ट उत्तराखंड में होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में मेरे 4 स्वर्ण थे और प्रेजेंट में अभी जो 38th नेशनल गेम उत्तराखंड हुआ है उसमें मैंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। मैं नेहा देवी मणिपुर से हूँ। मैं 1 साल से पहले नेवी में ज्वाइन किया है, अभी सर्विसेज से उतरा है हमने। कल C1 किया है, मैं सिल्वर मेडल आया और C2 किया, गोल्ड मेडल आया।
ओडिशा की ए सना तोम्बी देवी और रश्मिता साहू की जोड़ी ने रजत जीता है। हम लोग चैंपियनशिप से क्वालिफाई करके 8 राज्य जो है क्वालिफाई किया था नेशनल गेम्स के लिए। हम लोग कोशिश किया था सर्विसेज को मार के गोल्ड लेने के लिए, तो उतना तो साथ नहीं दे पाया। हम लोग प्रैक्टिस किया था तो फिनिश मतलब पास ही गया है, तो हम लोग बेहतर कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम उनको लीड देने के लिए, कवर करने के लिए। जो भी मेडल मिला है हम लोग बहुत मेहनत करके उधर से आया था, हम लोग को जितना भी मिला है हम लोग उसमें खुश है। मेरा नाम सना तुम्बी है, मैं उड़ीसा से खेल रही हूँ। मेरा पहले बार है ये मेरा नेशनल गेम, इसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता है। कैनो स्प्रिंट पुरुष वर्ग C2 500 मीटर में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अर्जुन सिंह और ज्ञानेश्वर सिंह की जोड़ी ने स्वर्ण, दिल्ली ने रजत और उत्तर प्रदेश ने कांस्य पदक जीता है। अर्जुन सिंह, ज्ञानेश्वर सिंह। अपने टीम के लिए गोल्ड लिया है, प्राउड फील हो रहा है। और क्या है, हम लकी, हमने गोल्ड लिया। और अभी हांगकांग गए थे हम दोनों, वहाँ पे भी हम दोनों गोल्ड लेके आए थे। इंटरनेशनल के ये सर अभी जो 2026 में एशियन गेम्स हो रहे हैं उनके लिए तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे अपने देश के लिए मेडल लेके आए। पुरुष वर्ग K2 500 मीटर में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के देवव्रत सिंह और पुरोहित बाड़ी ने स्वर्ण, उत्तराखंड ने रजत और उड़ीसा ने कांस्य पदक जीता। पुरोहित बाड़ी। मैं अभी काफी महीनों से इधर ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कोटेश्वर में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो खुला है। 1 साल से इधर ही है, हम ट्रेनिंग बारा कर रहे हैं। अच्छा क्लाइमेट है, अच्छा जगह है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला इधर ट्रेनिंग करने का, बहुत एडवांटेज भी मिला, इसका हम भरपूर फायदा उठाया इधर पे। अभी आज K2 500 मीटर में गोल्ड लिया है, जो हुआ अच्छा किया हमने, काफी खुश है। कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता में कल 13 फरवरी को 3 मुकाबले होने हैं। नेटबॉल में क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट के साथ विघ्नेश्वर। Here for the game of netball at Kanchenjunga Hall, Maharana Pratap Sports College. It was a spectacle of power, strategy and resilience. As the mixed events league matches started, totally there were 8 teams divided into 2 groups playing in round robin format, where each team compete against the teams in their own groups, and those securing the top 2 positions enters the semi-finals. When asked about the game's format, director of competition Ashok, मिक्स नेटबॉल टूर्नामेंट जो आज से स्टार्ट हो चुका है। आज सुबह 8 बजे इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई। फर्स्ट मैच हो रहा है हरियाणा वर्सेस छत्तीसगढ़ का। तो मिक्स नेटबॉल में इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों इकट्ठे खेलते हैं। इसमें 6 बॉयज खेलते हैं और 6 गर्ल्स खेलती हैं। तो इसमें जो है ये 4 क्वार्टर होते हैं, 7, 2, 7, 4, 7, 2 और 7। इसमें मिक्स, इसमें बॉयज भी खेलेंगे, गर्ल्स भी खेलेंगे। इसमें 4 गर्ल्स होगी, 3 बॉयज होंगे। तो 7 प्लेयर इसमें प्लेइंग में खेलते हैं और ये 2 दिन का टूर्नामेंट है, आज और कल इसकी क्लोजिंग है शाम को। तो ये कल शाम पर समारोह है। after winning a thrilling game against the dominant Haryana in their first league match, defending champions Chhattisgarh team captain Sandeep Verma. It was a very thrilling match. We know how Haryana dominate in mixed netball, so it was really hard for us. But just because of our president Meena Kargetta ma'am and our coach Rajesh Rathod sir, they gave us 15 days camp, which is very good. And our combination, we really did good in our match. It was neck to neck match, but we finally able to take the win. We used to train for 3 hours, both times, morning and evening. There are 7 players in the team. 4 are girls and 3 are men. 3 positions: center, goalkeeper and goal shooter. These 3 are men. The rest of the team are women. Here it's 7 minutes per quarter, 4 quarter matches it is. 2 minutes break in every quarter and 4 minutes break in half time. The host Uttarakhand team player Chetna Kanpal. अभी हमारा मैच था कर्नाटका के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा रहा। हमने उनको नेक टू नेक परफॉर्मेंस दी है। जो स्ट्रैटेजीज हमारे कोचेस ने हमें बताई थी वो हमने अच्छे से फॉलो करा और उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और हमने कर्नाटका से मैच को विन कर लिया। 10-12 की लीड रही हमारी मैच में, जिसमें हमें इंटरनेशनल कोचेस प्रोवाइड करवाए गए थे। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और वो मतलब बेस्ट भी हो रहा है। हमारी टीम हमारा साथ दे रही है और गुड लक चल रहा है, मतलब बेस्ट चल रहा है सब। As the league matches are set to end by tomorrow afternoon, teams are playing their best to enter the semi-finals. रुद्रपुर में शूटिंग की प्रतियोगिताएं जारी हैं, रिपोर्ट के साथ नीतीश अरोड़ा और प्रतिष्ठा जैन। आज हम रुद्रपुर में स्कीट शूटिंग प्रतियोगिता के साक्षी बने। सभी शूटर्स ने अपनी कुशलता, धैर्य और खेल भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस पर चीफ ज्यूरी अमरजंग सिंह। बहुत अच्छा जी, सारे शूटरों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। नेशनल रिकॉर्ड बनाया इधर स्कीट विमेन में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज थी, बहुत अच्छा कंपटीशन रहा। विमेन्स कैटेगरी में क्वालिफाइंग राउंड्स में 124 आउट ऑफ 125 टारगेट शूट कर पंजाब की गनीमत सेखों ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया और फाइनल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। तो जब गान को पकड़ते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हाँ, मैं गनीमत सेखो हूँ और ये गनीमत सेखो को शूटिंग के लिए ही बना है। मैं अपना कंपटीशन हूँ। आई सी माई सेल्फ विनिंग द ओलंपिक गोल्ड मेडल। यूपी की अरीबा खान को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। The competition was also very tight. I think it was a bit like about practice. That's where I lagged. So it was like a lot of pressure, but I think that's like how you learn. इस मुकाबले को सीख की तरह ले रही हैं कांस्य
कांस्य विजेता ओलंपियन राइजा ढिल्लों। I've been struggling with my finals for quite some time and it's something I need to work on. It's not anything mental for sure, it's something technical, but I just wasn't getting the time to fix it because we had really back-to-back competitions. I want to perform better at the international level, so that's my aim for now. मेंस कैटेगरी में उम्मीद के अनुसार अनंतजीत सिंह नरूका ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इतनी मेहनत लगती है, 2 दिन हम इतना फोकस से बंदूक चला रहे हैं। फील्स गुड टू विन अ कंपटीशन। एक्सपीरियंस आएगा इससे कंपटीशन से, बिकॉज आज विंडी भी कंडीशंस थी तो मेरे रिदम के साथ चला रहा था बंदूक और इट हेल्प्ड मी। बेहद अनुभवी शूटर छत्तीसगढ़ के परमपाल गुरु ने रजत पदक जीता। The age is not the barrier, it is how good your reflexes are there with your eye, mind and finger. Even starting at station 5th and kept pulling and here is the silver medal. कांस्य पदक पंजाब के भवतेक सिंह गिल ने जीता। A couple of birds I missed. I missed a repetitive bird again and again. Wasn't able to refocus and analyze what I was doing wrong. But in the last series I was able to hit it. I wouldn't say the score was what I wanted. Amazing feeling. It's my first national games medal and as always I'm very proud to represent Punjab. कल इसी शूटिंग रेंज पर मिक्स्ड स्कीट के मुकाबले होंगे। नजर और फुर्ती का खेल फेंसिंग, तलवार के साथ साथ आगे पीछे होते कदमों से किसने बाजी मारी। हल्द्वानी से रिपोर्ट के साथ संजय पांडे और श्री कृष्णा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तलवारबाजी के लिए 3 स्वर्ण पदकों के लिए खिलाड़ियों ने खूब जोर आजमाइश की। सीनियर टीम महिला सेबर, सीनियर टीम पुरुष एपी और सीनियर टीम पुरुष फॉइल तीनों ही मुकाबलों में हरियाणा का दबदबा रहा। टीम महिला सेबर ग्रुप में हरियाणा ने गोल्ड पर कब्जा किया तो पंजाब को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ये है हरियाणा की कप्तान मंजू। बस यही कहना चाहेंगे कि आगे इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे आगे। बस ऐसे चल रहा था कि अब एक भी स्कोर नहीं देना और अच्छा परफॉर्म करना और ज्यादा, और टीम वालों ने बहुत सपोर्ट करा पीछे से। सीनियर टीम पुरुष फॉइल के फाइनल में हरियाणा ने सर्विसेज की टीम को 45-37 के स्कोर से पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया। सिल्वर मेडल सर्विसेज को बिहार और मणिपुर को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। ये है हरियाणा के कप्तान वेद। अच्छा लग रहा है, यही कहना चाहूँगा अभी तो। मतलब हमारे अपोनेंट अच्छे थे पर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। आज हम जीतने के लिए आए थे और हम जीत गए। हम लूज भी कर रहे थे तो भी हमारी मेंटलिटी थी कि हमें जीतना है। हम एक टच के लिए फाइट कर रहे थे। आज का तीसरा गोल्ड सीनियर मेंस एपी वर्ग का भी हरियाणा के नाम रहा। जम्मू और कश्मीर को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा मणिपुर और सर्विसेज की टीम को। ये है हरियाणा के कप्तान गौरव। बहुत ही अच्छी तैयारी की थी मैंने और मेरे कोच ने मेरी बहुत ही अच्छी तैयारी करवाई थी। बाकी साथी हैं, उनका जोश कैसा रहा? उनका भी जोश अच्छा था। मेरी पूरी टीम मेरे को सपोर्ट कर रही थी, मेरे कोच भी, मेरी टीम भी। ओलंपिक में मेडल लेना है, उसके लिए कितना पसीना बहाना? बहुत ज्यादा, बहुत ही हद से भी ज्यादा। जिम्नास्टिक्स की आज स्पर्धाएं जारी रही। लचक, ताकत, फुर्ती और संतुलन जब एक साथ नजर आता है तब हासिल होता है पदक। रिपोर्ट के साथ खुर्शीद अहमद। The penultimate day of gymnastics was full of excitement as plenty of medals have been decided. 2 events of rhythmic gymnastics were played. In both, Maharashtra clinched a gold medal. In the hoop rhythmic gymnastics, Parina Madanputra was the winner. It's my first national games. I'm 16 years old. I got the gold medal in hoop, which is a really proud moment for me because hoop is one of my favorite apparatus. I represented India for the Asian Championship playing hoop and got selected for the finals on the rank 5, which was a really big thing and I'm extremely proud of myself. My ultimate goal so far is to make my parents, my coaches and especially my country proud in the further international competitions like the Commonwealth Games or the Asian Games and soon get selected for Olympics and maybe win something for my country. In the ball rhythmic gymnastics event, the winner was Kimaya Amalesh Karle. It is an amazing feeling. Of course, the gold medal is what every athlete aspires to win and I believe I did my best, my 100% in my performance. And I believe I deserve this for the hard work. And my coaches are also very happy. My future goal is to win an international medal for India in rhythmic gymnastics. In aerobics gymnastics, altogether winner of 5 gold medals have been decided today. Out of that, Maharashtra won 2, Manipur, West Bengal and Gujarat clinched 1 each. Here is men's individual events gold medalist Met Koshambe of Gujarat. I feel very great right now because in the national championship, because of the small mistake, I was on the bronze medal. So it feels like back to home because I was a gold medalist from the past 3 years and then the bronze medal came, so it just broke my heart and everything. It's finally I won my medal back, so it just feels great. Ariha Pangabam of Manipur won the gold in women's individual event. I feel amazing. At the same time, I feel excited. And there is also one tiny bit of scare because last time also I got gold. And to maintain that
there's a little bit of pressure as well. There are so many expectations from people, from parents, from coaches. Even though they don't tell, still you kind of feel that pressure. So, but anyway, I did it. In mixed pair event of aerobics, West Bengal's pair of Abdul Hamid and Shahina Gupta clinched a gold. Maharashtra clinched gold medals in trio as well as group event of aerobics. मॉडर्न पेंटाथलन के मुकाबलों पर हमारी टीम ने रखी पैनी नजर। रिपोर्ट के साथ हैं कृष्णदेव शुक्ल, कविंद्र कुमार और मोहम्मद। Today, the women's tetrathlon competitions were held at the Manaskand Khel Parishar in Halwani. The event featured 4 disciplines: swimming, fencing, running and shooting. Maharashtra asserted their dominance in the tetrathlon competition, winning the gold in both the individual and team events today, following up on yesterday's perfect run set by the men. Diksha Sandeep Yadav displayed a strong performance to clinch the gold medal. मैंने एक्सेप्ट किया था कि मुझे गोल्ड मिलेगा और आज वो पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। The silver medal also went to Maharashtra's Mugdha Waval. I am very happy that I have given my 100% and I have not given up. That is my best and main highlight of the day. Bhargavi Rawat of Uttarakhand finished third to take the bronze. मेरे सारे टीचर्स को थैंक यू सो मच। मेरे से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है वो, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मतलब बता नहीं पा रही हूँ। In the team event, Maharashtra's Diksha Yadav, Mugdha and Dipti won the gold. Here is team member Mugdha. I am very proud of my team. Everybody has given their best efforts and I am really thankful for our coach. Team Uttarakhand finished second to win the silver medal. Haryana rounded up the standings by winning the bronze. Here's Raunak for Haryana. हम सबकी मेहनत दिखी है एंड डेफिनेटली हम डिजर्व करते थे ये मेडल और मैं बहुत खुश हूँ अपनी टीम के लिए, हरियाणा के लिए और अपने खुद के लिए। गोल्ड जितनी मेहनत नहीं हुई इस बार, नेक्स्ट टाइम आप देखिए गोल्ड लाएंगे। कुश्ती के मैट पर कौन किसको चित करने में कामयाब रहा, रिपोर्ट के साथ राजीव रंजन तिवारी। आज योगास्थली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोशनाबाद हरिद्वार में रेसलिंग के 6 गोल्ड दांव पर लगे हुए थे। शाम 5 बजे से गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मैचों की शुरुआत हुई। सबसे पहले फ्री स्टाइल के 65 किलो भार वर्ग का पहला ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला गया, जिसे तेलंगाना के पिलन गोयला ने कर्नाटक के महेश को टेक्निकल सुपीरियोरिटी के आधार पर हराकर ब्रॉन्ज जीता। वहीं दूसरे ब्रॉन्ज मेडल मैच में हरियाणा के सिद्धार्थ ने भी पंजाब के हरविंदर को टेक्निकल सुपीरियोरिटी के आधार पर हराया। वहीं गोल्ड मेडल मैच में सर्विसेज के मोहित ने चोटिल होने के बावजूद मेजबान उत्तराखंड के अभिषेक को हराकर गोल्ड जीता। मैच के बाद मोहित: मुकाबला तो अच्छा था लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह खेलता, लेकिन घुटने में चोट के कारण मैं खेल नहीं पा रहा था। घुटना बार बार डिसबैलेंस हो रहा था, चला निकल रहा है घुटना। कोच साहब ने ये बोला था कि ये जिद्दारी के पल होते हैं, जिद्दारी करे घुटना में ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी जिद्दारी करेगा तो मुकाबला जीत जाएगा आराम से, बच के भी, नहीं तो मैं और ज्यादा अच्छा तरीके से खेल पाता, घुटने में चोट नहीं होती। तो ग्रीको रोमन 77 किलो भार वर्ग का ब्रॉन्ज मेडल मैच और गोल्ड मेडल मैच भी खेला गया। इस कैटेगरी में मध्य प्रदेश के औरंगजेब और दिल्ली के सागर को कांस्य मिला, तो वहीं सर्विसेज के करण और राजस्थान के छगन को स्वर्ण और रजत मिला। स्वर्ण जीतने के बाद करण: बढ़िया तैयारी थी, अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी कोच साहब ने, कुलदीप कोच साहब हैं इंडियन नेवी से, तो अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी, तो अच्छी तैयारी थी। महिलाओं के 68 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज सर्विसेज की प्रियंका और हिमाचल प्रदेश की सोनिका कुमारी को मिला, तो वहीं गोल्ड मेडल मैच में हरियाणा की राधिका ने पंजाब की राजनदीप को टेक्निकल सुपीरियोरिटी के आधार पर मात दी और कुश्ती का दंगल अपने नाम किया। गोल्ड जीतने के बाद राधिका: बहुत खुशी हो रही है, तैयारी अच्छी करके आए थे, पूरी गोल्ड की सोच के आए थे घर से कि गोल्ड लेके आना है। और अभी फाइनल बाउट आपका जो था वो वन साइडेड रहा और एक तरफा आप फाइनल बाउट में टेक्निकल सुपीरियोरिटी से आप निकल गए। वो मतलब इतनी भी नहीं सोची थी कि इतनी ज्यादा चलेगी, पर फिर भी अच्छी बाउट थी कुल मिला के। कुश्ती के मैट पर देर रात तक स्वर्ण पदक के और कांस्य पदक के मैचेस चलते रहे। कल भी कुश्ती के मैट पर 6 स्वर्ण पदकों का निर्णय होगा, जिनमें फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम भार वर्ग, फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम भार वर्ग, ग्रीको रोमन 60 किलोग्राम भार वर्ग के मैचेस होंगे। जूडो के खेल में उठापटक जारी रही। जीत का जोश जूडो के मैट पर साफ नजर आ रहा था। विस्तृत रिपोर्ट के साथ संकल्प मिश्रा। रजत जयंती खेल परिसर के मोनाल हॉल में आज पुरुषों के प्लस 100 किलोग्राम भार वर्ग, माइनस 100 किलोग्राम भार वर्ग और महिलाओं के प्लस 78 किलोग्राम भार वर्ग और माइनस 78 किलोग्राम भार वर्ग में जूडो की स्पर्धा का आयोजन किया गया। पुरुषों के माइनस 100 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हरियाणा के रोहित अहलावत को, प्लस 100 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण सर्विसेज के यश विजयरन को, वहीं महिलाओं के माइनस 78 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण चंडीगढ़ की इशरूप नारंग को और प्लस 78 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण दिल्ली की तुलिका मान को हासिल हुआ। माइनस 78 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी स्वर्णिम जीत पर चंडीगढ़ की इशरूप नारंग। सर मेरे दिमाग में सिर्फ एक स्ट्रेटेजी
थी कि मैं उन्हें चला के अपनी मूवमेंट में ला के मारूं, हालांकि उनमें बहुत पावर है। आई अप्रिशिएट हर। मुझे सिर्फ इस चीज का एडवांटेज हो रहा था कि मैं उन्हें कंट्रोल कर पा रही थी, मेरा वेट उनसे ज्यादा है, सो आई वाज एबल टू कंट्रोल हर। इसी वर्ग में रजत पदक पाने वाली अनुभवी खिलाड़ी केरला की अस्वाति पीआर से कहां चूक हुई? मेरा थोड़ा टेक्निक प्रॉपर नहीं था, इसीलिए थोड़ा बॉडी वेट कम है ना मेरा, तो इस लोग को 78 में था, मेरा वेट तो 73 है, इसलिए थोड़ा पुलिंग पुशिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। बाउट में जाने से पहले क्या चल रहा था -100 किलोग्राम भार वर्ग विजेता हरियाणा के रोहित अहलावत के मन में? मेरे दिमाग में ये था कि कैसे भी करके जीतना, मेरे को गोल्ड ही चाहिए। मेरे को मैच के पहले यही था कि अपने अटैक करने हैं और अपनी ग्रिप रखनी है, और सर ने भी बताया था कि अपनी ग्रिप से खेलियो, दबा के खेलियो। प्लस 78 किलोग्राम भार वर्ग में सुनहरी जीत हासिल करने का कितना आत्मविश्वास था दिल्ली की तुलिका के मन में? ओलंपिक्स के बाद काइंड ऑफ मेरा पहला ही कंपटीशन है। नेशनल्स का इतना कोई बर्डन नहीं था मेरे को, मतलब इतना कोई प्रेशर भी नहीं था। यहाँ की मेनली ये था कि मुझे बस कोई गलती नहीं करनी है, बस मेरे को अपना इंजरी बचा के और वो कोई मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो देखना है बस मुझे। तुलिका से हारकर रजत पदक पाने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पंजाब की रजविंदर कौर। मैं 2014 की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स की। 2018 में मैंने एशियन गेम खेला, तो उसके बाद मेरी नी इंजरी हो गई थी, बोथ नीज, तो मैंने सर्जरी करवाई थी 2022 में। तो 5 साल के बाद मेरा ये कमबैक था, तो प्रैक्टिस करके आई थी, अच्छी प्रैक्टिस करके आई थी। ये था कि भी मेडल लेके जाना है। चलो तुलिका अभी पीक पे चल रही है। अपनी तरफ से मैंने 100% अपने एफर्ट्स किए कि मैं चैंपियन बनूं, बट बैड लक नहीं बन पाए। स्मैश और ड्रॉप, पल पल बदलते टेबल के छोर, टेबल टेनिस के मैचों की रिपोर्ट के साथ मोहम्मद शाहिद आजमी। देहरादून के परेड ग्राउंड पर जारी टेबल टेनिस के मुकाबले अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज महिला तथा पुरुष वर्ग के खिताबी मुकाबले खेले गए, जहां महिला वर्ग का गोल्ड मेडल महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को दिलचस्प अंदाज में 3-2 से हराकर जीता। वहीं पुरुष वर्ग का खिताबी मुकाबला तमिलनाडु के दिग्गज खिलाड़ी जी साथियान और एंथोनी अमलराज ने अपने ही साथी अभिनंद और प्रियेश को शिकस्त देकर अपने नाम किया। ये मुकाबला बहुत ही कांटे का रहा। को बता दें 8-11, 11-4, 5-11, 11-6, 11-7 से इस मुकाबले का फैसला हुआ। इससे पूर्व सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद जी साथियान खुश नजर आए। वजह यह थी कि मेडल तो तमिलनाडु के खाते में ही जाना था। हाय, सत्यन ज्ञानशेखरन हियर फ्रॉम तमिलनाडु। बहुत खुश है। हम अभी मेन डबल्स का फाइनल में पहुंच चुके हैं और हम तमिलनाडु का और एक पैर से ही खेलने वाले हैं फाइनल्स में, तो ये बहुत अच्छी खबर है। और हमने बहुत अच्छा मैच जीता आज महाराष्ट्र के साथ, और मेरा पार्टनर अमलराज ने भी बहुत अच्छा खेला, तो मैं काफी खुश हूँ कि हम फाइनल्स में पहुंच पाए। महिला तथा पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में हारने वाली 4 टीमों में 3 पश्चिम बंगाल की थी। ऐसा क्यों हुआ, यही सवाल हमने पश्चिम बंगाल टीम के कोच सुब्रत चक्रवर्ती से किया। हम लोग बहुत क्लोज हारा आज। हमारा जो वुमेन्स दोनों सेमीफाइनल था उसमें मैच पॉइंट आप होके हम हार गए। कभी कभी ऐसा होता है गेम में कि लक नहीं रहता, तो हम लोग 2 मैच पॉइंट होके हार गए। उसमें हमारा मेंस डबल्स जो है उसमें भी दोनों गेम 10-8 आप होके हम, तो मुझे लगता है कि आज का दिन हमारा लक अच्छा नहीं चल रहा है। इससे पूर्व महिला वर्ग के पहले सेमीफाइनल में महाराष्ट्र की स्वास्थ्य घोष और रिया चितले ने पश्चिम बंगाल की जोड़ी को मात दी। दिया चितले: बहुत ही ज्यादा क्लोज मैच था। हम एक्चुअली 2-0 डाउन थे, पर उसके बाद हमने बहुत ही अच्छा फाइट किया, हर पॉइंट पकड़ के खेला, और एंड में भी बहुत ही क्लोज चल रहा था। वो लोग भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, पर हम एंड में थोड़ा हमारा गेम अप किया और जीत गए। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में बड़ा अपसेट देखने को मिला। तमिलनाडु की नित्या श्रीमनी और काव्या श्री प्रभाकर ने पश्चिम बंगाल की मोमा दास और अहिका मुखर्जी को शिकस्त दी। मेरा नाम नित्यश्री मनी है और मैं तमिलनाडु से हूँ, और मेरे पार्टनर का नाम है काव्यश्री भास्कर। हम दोनों ने पहले ही स्ट्रेटेजी बना के गए कि हम दोनों अग्रेसिव खेलना है और थोड़ा दिमाग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अहिका दी के पास बहुत इफेक्टिव रबर है, तो अगर उस रबर को हैंडल नहीं कर पाए तो मैच नहीं हो पाएगा। तो हमने प्रैक्टिस किया उसके मैच के पहले, और दोनों ने मिला के अग्रेसिव खेला, और बहुत पॉजिटिव था हमारा माइंडसेट। बड़ा उलटफेर उस वक्त देखने को मिला जब तमिलनाडु की शियाए ने पश्चिम बंगाल की सुतीर्था बैनर्जी को हराकर स्पर्धा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आई एम श्री आनंद, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। दिस वाज माय मेमोरेबल मैच। आई प्लेड विद सुतीर्था दी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई प्लेड वेल, एंड आई आल्सो थैंक तमिलनाडु टेबल टेनिस एसोसिएशन। आपको बता दें कल एकल तथा मिश्रित युगल के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। अब आखिर में एक नजर मेडल्स टैली पर। संकल्प मिश्रा। पदक तालिका की बात करें तो 61 स्वर्ण और कुल 107 मेडल के साथ सर्विसेज पहले पायदान पर, 47 स्वर्ण और कुल 167 मेडल के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, और 35 स्वर्ण और कुल 135 मेडल के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर काबिज है। वहीं मेजबान राज्य उत्तराखंड 22 गोल्ड और कुल 95 मेडल के साथ 7वें स्थान पर बना हुआ है।
इस रोमांचक खेल यात्रा का आज का सफर यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और प्रस्तुति सहायक दीपांकर मिश्रा। कल इसी समय 38वें राष्ट्रीय खेलों की दैनिक रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। सुनना न भूलें। नमस्कार। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में खेले जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा देहरादून में तैयार किया गया।